Hello, good morning, students. Welcome to e-learning. We are learning chapter 6 markets, and this is the last lecture of our chapter. And we are going to learn a very important topic, a very last topic of this particular different types of markets. In that is oligopoly market. So, in our lecture 6, we can say we are going to learn about oligopoly. So, this has been not only the last one, but actually there are so many different types of market. But here, for your syllabus point of view, there is no cutoff in this chapter, and this last topic is very important, where it has a good weightage and so many different questions comes and different concepts are also there. So, what is oligopoly? We have learned about perfect competition, we have learned about monopoly, we have learned about monopolistic, where it exists both perfect and monopoly. In monopolistic market we find that both monopoly and perfect competition exist. So here the oligopoly is been divided into two words. It has been taken from the two Greek words, that is oligos and we can say polion. So oligos means here very few, or we can say few, very less number of quantity, that is called oligos in Greek. And then after polion means seller. So here very few sellers are there which are ruling the market and which are handling the market here. So we are going to know, in the perfect competition we have seen there is numerous buyer, numerous seller. In the monopoly we have seen only one seller and the numerous buyer. In monopolistic both are there, that is number of buyers are also more, number of sellers are also more. But here in oligopoly the sellers are less, and then there are so many buyers. So how this particular market works and what are the characteristics we are going to learn today. So oligopoly इज हैविंग ओनली फ्यू प्रोड्यूसर, मतलब उन लोग के प्रोड्यूसर सेलर्स जो है वो कम है, बट द बायर्स आर मोर. तो ऐसे कौन से वाले मार्केट है जिसके अंदर सेलर्स कम है? वी हैव टू थिंक, बिकॉज वी फाइंड दैट इन मोनोपोलिस्टिक वी हैव टॉक अबाउट द डिफरेंट शॉपकीपर्स विच आर देयर इन योर स्ट्रीट्स. तो आपके यहाँ पे जो स्ट्रीट्स के ऊपर जो शॉपकीपर्स है तो वो एक मोनोपोलिस्टिक, बिकॉज दे आर सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. अगेन शॉपकीपर्स मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो किराने वाली दुकान या स्टेशनरी दुकान या डिपार्टमेंटल स्टोर, इट कैन बी गारमेंट स्टोर, ओके, फैब्रिक स्टोर और डिफरेंट जो भी शॉप्स वगैरह है वो पूरा आ जाएगा. नाउ हियर द ओलिगोपोली हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन, एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन. क्यों? बिकॉज एक तो सेलर्स कम है. सेलर्स फ्यू मतलब कितने होने चाहिए? इट इज नियर टू 10 to 20, ज़्यादा सेलर्स नहीं है. वेरस अगर हम शॉपकीपर्स की बात करें, अगर आप मार्केट जाते हो, मार्केट के अंदर डिफरेंट शॉप्स रहते हैं. सो देर आर डिफरेंट मोबाइल शॉप्स, देर आर डिफरेंट गारमेंट शॉप, मोस्ट प्रॉब्ली देर आर सो मेनी गारमेंट शॉप्स. So you find that clothes and garment shops are more, and they have very much big new we can say so many number of sellers are there and buyers also more. But here in this particular kind of market the few sellers are there, that is I told only 10 to 20. अगर हर शहर में जाओगे तो बहुत कम सेलर्स ये वाले टाइप के अंदर मिलेंगे हमको हमारे यहाँ पे. सो आई विल गिव यू द एग्जाम्पल आफ्टरवर्ड्स. बिफोर विद दैट वी आर जस्ट लर्निंग द मीनिंग. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर, ओलिगोपोली इज अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ कॉम्पिटिटर्स. तो ओलिगोपोली मार्केट कैसे काम करता है? हमारा सेलर, इट इज अ बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट सेलर्स. कॉम्पिटिटर्स मतलब कौन? जो सेलर्स, जो प्रोड्यूसर्स है, उन लोग का बिहेवियर कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है वो मार्केट पूरा. नाउ हियर अ वेरी स्मॉल एग्जांपल आई वांट टू से, और आई वांट टू गिव यू दैट इज यू हैविंग अ मोपेड और अ बाइक. लेट्स टॉक अबाउट द मोपेड. तो मोपेड में कितनी कंपनीज हैं हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर? लेट्स काउंट. दैट इज एक्टिवा, दैट इज वी कैन से होंडा. Then after Maruti Suzuki, sorry, only Suzuki, not Maruti, we have Axis. Then after Hero, that is Maestro, TVS. Then after Pleasure, and then after Vespa, Duet. So we can say 5 to 6. There are many more, Swiss and all. That is all same company. So 5 to 6 different types of mopeds are there. And apart, तो उन लोग के seller कितने हैं? 5 to 6, या we can say max to max 10 sellers are there. Yes or no? So 10 different companies are there. For example, let's take 10 different moped companies are there, which are very few, but still they are running the entire market, that is India. तो पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ मोपेड की बात करें तो कितने मोपेड्स है? दिस देर आर मैक्स टू मैक्स 10 कंपनीज, बराबर. उससे ज्यादा कोई है ही नहीं मोपेड्स की बात करें. सो वी फाइंड दैट दिस फ्यू सेलर्स आर रनिंग द होल मार्केट, एंड
The competition between the sellers, that is Honda, Suzuki or we can say Hero, तो वी फाइंड दैट इन लोग के ऊपर जो मार्केट कंपटीशन रहता है वहां से पूरा मार्केट सर्कुलेट होता है. मतलब व्हाट इज द कंपटीशन दे आर हैविंग, that extremely that entire impacts upon the market. So that's why we can say there is an extreme competition. ऊपर वाली लाइन में लिखा है क्या, it is an extreme competition. Again, to know in detail, another professor, that is Baumol, has given his definition. So he also tells that oligopoly is a market in which even a small number of sellers out of the total less sellers are effect enough to affect the price of the product. मतलब कहने की बात कि जैसे 10 sellers हैं मोपेड्स की, मैंने जैसे बात किया, अगर उसके अंदर एक्टिवा विच इज द होल्डिंग द मोस्ट ऑफ द और सुजुकी, ये दोनों कट टू कट कॉम्पिटिटर रहते हैं, तो ये दोनों अगर किसी की जगह पे भी वो लोग प्राइस में चेंज करते हैं, नहीं तो कुछ नया प्रोडक्ट लाते हैं, तो पूरा मार्केट के अंदर ये सिचुएशन इम्पैक्ट होता है और वो एक सेलर काफ़ी है पूरा मार्केट के अंदर प्राइस चेंज करने के लिए. एक वेरी सिंपल एग्जांपल, एक्टिवा एंड एक्सेस एंड एक्टिवा, वी आर नोइंग दैट. सो दे आर कट टू कट कॉम्पिटिटर्स एंड दे हैव बोथ, नाउ दे हैव 125 सीसी वी कैन से. तो यहाँ पे अगर एक्टिवा ने भाव बढ़ा दिया तो सुजुकी वाला कम थोड़ी बैठेगा, तो वो भी एक्सेस का भाव बढ़ा देगा. सो अल्टीमेटली वी फाइंड दैट देयर द डिपेंड्स कि एक सेलर पूरा मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है. यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है. सो इन ओलिगोपॉली इट इज वी कैन से इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स और द सेलर्स, हाउ दे ट्राई टू बिहेव एंड हाउ टू ट्राई टू कॉम्पीट विथ ईच अदर. क्लियर? नाउ let's learn some of the characters. So we have seen the two types of meaning which have been given by the Stigler and Baumol. Now here very first says that it is having very few number of sellers are there and numerous buyer. Buyer कितने हैं? बहुत सारे. We find that every house there is one moped at least on an average. किसी लोग के पास ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन देयर यूसेज एंड देयर इनकम, बट वी फाइंड दैट एटलीस्ट वन. सो हम ऐसा गिन के चले कि एवरी फैमिली के पास एक मोपेड तो रहती है, or else we can say one bike or one moped is there, any of them. So उन लोग के sellers बहुत few है and we find that the buyers are more. So we can say because it is very easy and it is very कोई भी चला सकता है. तो मैंने यहाँ पे मोपेड का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ. सो इट विल बी अ वेरी बेनिफिट और इजी वे विच विल हेल्प यू टू मेक इट अंडरस्टैंड. नाउ यहाँ पे बात करें तो so we find that there are limited number of sellers, that is less than 10 or 20. तो मैंने मोपेड की बात की तो it is less than 10. अगर हम बाइक्स की बात करें it is less than 20 because बहुत सारी different companies है. Then after we find that because यहाँ पे sellers कम है तो there is a chance of monopoly. Monopoly control हो सकता है. क्यों? Because मैंने definition में बोला कि अगर एक सिंगल seller भी अपना प्रोडक्ट नया लॉन्च करके या दूसरा कुछ में प्राइस बढ़ा दे and he can influence the price in the market. मतलब अभी पहले की गाड़ियाँ कितने 50-55 के अंदर आ जाती थी एंड नाउ इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 70-80,000 और 90 मैक्स 80,000 के अंदर हमारा एक मोपेड आ रहा है. सो इट हैज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ इंक्रीज. अर्लियर इट वॉज विथ इन 50,000 और विथ इन 55,000 वी फाइंड दैट आवर बाइक्स आर बीन we can say the selling price was been there for these particular mopeds. So this is how we find that कि एक seller कितना वो competition आगे लेके जाके और हर साल कितना प्राइस बढ़ा सकता है. So he can influence the market control. Again यहाँ पे buyers भी ज़्यादा है because buyers ज़्यादा है मतलब क्या होगा कि there is always a demand. There is always a demand for this type of products and because of that if any one or two buyers are does not willing to buy at this particular higher price, उन लोग की वजह से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं because there are many others who want this the same product with the price which is been sold. तो सेलिंग प्राइस पे लेने के लिए बहुत सारे लोग तैयार भी है, लोन पे लेने के लिए तैयार है एंड वी फाइंड हियर दिस पर्टिकुलर थिंग्स हैपेंस. चलो सो यहाँ पे हम कहने का क्या जा रहा है कि सेलर कैन इन्फ्लुएंस इन द मार्केट बट बायर कैन नॉट. बायर इन्फ्लुएंस कर सकता नहीं, इंडिविजुअल बायर्स कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते क्योंकि देर आर न्यूमरस बायर्स, बट सेलर के अंदर देर आर फ्यू सेलर्स, इन दैट ऑल्सो वन कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मार्केट. सो दिस इज हाउ ओलिगोपॉली टर्न्स. सो ये पूरा मोनोपॉली भी नहीं है लेकिन यहाँ पे फ्यू सेलर्स है तो मोनोपॉली का कंट्रोल आ सकता है किसी के पास भी. सेकेंड, the second characteristic talks about the similar and substitutable
प्रोडक्ट्स। तो सब्स्टिट्यूएबल प्रोडक्ट्स मतलब क्या कि जैसे मैंने एक्सेस एंड एक्टिवा की बात की, तो एक्टिवा एंड एक्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल द कंपनी इज गिविंग डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट वेराइटीज. So mopeds are the same, but there are different names and different styles and structure. The shape of the we can say mopeds are different. तो वो बहुत सारे थोड़े बहुत differentiation, so they are near to, उन लोग का same to same थोड़ा बहुत रहता है. Okay, so this is what we find, that they try to sell the similar kinds of products in the firm. Again we find that here, like salt की बात की है, salt ऐसे बहुत सारे different companies का salt आता है, crude oils are there, tea are there. So these are the common example for your this particular oligopoly market, where they are selling different kinds of substitutable goods, or we can say similar goods. So here we can say it is an imperfect oligopoly. Imperfect oligopoly क्यों? फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स एंड मोटरसाइकिल्स की बात की है कि जब ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी बहुत कम लोग हैं, बिकॉज देर आर डिफरेंट फ्लेवर्स, तो डिफरेंट फ्लेवर्स के लिए डिफरेंट कंपनीज हैं. सो यहाँ पे द सेलर्स आर लेस, सो दे कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट एंड उन लोग का प्राइस राइज अगर हो जाता है. जैसे मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया है, दैट इज कोको कोला, पेप्सी एंड थम्स अप. सो इफ दे कैन रूल, ये थ्री, दिस आर द थ्री ओनली विच ट्राई टू कंट्रोल द मार्केट. सो उन लोग का ज्यादा सेल होता है. अगर कोको कोला ने प्राइस बढ़ा दिया तो पेप्सी बढ़ा देगा, पेप्सी बढ़ा दिया तो थम्स अप बढ़ा देगा. सो दिस थ्री आर हैविंग कीन कॉम्पिटिटर्स एंड वेरी फ्यू. तो ये लोग क्या करते हैं कि इन लोग के आगे ये तीन जन है, that is this three cold drink makers, these three companies does not allow any other to come in. उन लोग के लेवल पे कंपटीशन करने के लिए कोई नहीं आ सकता, ऐसा वो लोग ने मार्केट. सो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न फर्दर. सो व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज ओनली द थिंग, दैट इज दे आर हैविंग सिमिलर प्रोडक्ट्स. क्लियर? Third, entry and exit of the firm. So here my point comes here, that oligopoly is having free entry and exit, or we can say restricted. तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ ओलिगोपोलीज है. इट कैन आइदर फॉलो द फ्री वन, दैट कि दूसरे लोग को भी आने दे और जाने दे, दैट इज अ फ्री ओलिगोपोली मार्केट वेयर दे अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म. सो और देर इज अनदर टाइप, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड ओलिगोपोली, वेयर वो लोग रेगुलेटेड करते हैं. रेगुलेट मतलब वो लोग सोच के एक टीम कमेटी बिठा के बाद में सोचते कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, तो उसके बाद नई कंपनी अंदर आ सकती है. नहीं तो ये फ्यू पीपल्स ओनली रनिंग दिस पर्टिकुलर मार्केट. जैसे मोपेड्स में अभी बहुत सारी, पहले पहले तो कितनी कंपनी थी, ओनली थ्री कंपनीज वर देयर, हीरो, एक्सिस, दैट इज हीरो, सुजुकी एंड वी फाइंड दैट होंडा वर बी रूलिंग नाउ मोपेड के अंदर. लेकिन अभी बहुत सारे अलग अलग कंपनीज आई. टीवीएस था, 4 to 5 कंपनीज, बट नाउ वेस्पा एंड ऑल डिफरेंट, Fasino and all different companies came. Then we can say, so there are two different types. अगर वो लोग को वो मार्केट के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रखना है, रेस्ट्रिक्ट मतलब उन लोग का कंट्रोल होना चाहिए. मतलब ये 4-5 सेलर्स जो साथ में मिलके एक एसोसिएशन बना के रहते हैं कि भाई ओनली वी फ्यू पीपल्स विल रन द मार्केट एंड नो अदर पर्सन विल अलाउ और विल बी अलाउड टू एंटर इन टू मार्केट. अगर वो आना चाहता है तो उससे पहले हमसे बात करनी पड़ी, हमारे साथ मीटिंग करनी पड़ी, देन इफ दे पॉसिबल तो आएंगे, नहीं तो नहीं. लेकिन फ्री एंट्री एग्जिट में एनी वन कैन स्टार्ट, एनी वन कैन go. So this is how it follows. So I am just particularly taking about the moped, but there are different products like जैसे टी है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉल्ट है, क्रूड ऑयल्स है, जिसके अंदर फ्यू सेलर्स है. फ्यू मीन्स 10 to 20, नॉट मोर देन दैट. क्लियर? चलो, the fourth point talks about the selling cost. So what is selling cost? We have seen in the earlier monopolistic के अंदर, यहाँ पे लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं सेलर्स और प्रोड्यूसर्स, दे ट्राई टू अट्रैक्ट बाय गिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी कैन से डूइंग सम स्मॉल एक्सपेंसेस. तो उसको बेचने के लिए, ज़्यादा अच्छे दिखने के लिए, लाइक वो लोग क्या, नहीं तो गिफ्ट हैम्पर दे देंगे, नहीं तो बोलेंगे कि परचेज 3 of the pack and I will give you a बाउल, जैसे गुड डे में ऑलवेज होता था पहले की बात है, when I was a kid and I was going, so I was going, so if you try to purchase more than 2 or 3 products, or we can say 3 packs of good day, you get a one small bowl of a, we can say, glass. सो वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स जो लोग निकालते हैं जिससे उन लोग की सेलिंग बढ़ सके. द मेन पॉइंट ऑफ फोकस पॉइंट इज द हाउ टू इंक्रीज द सेलिंग बाय डूइंग सम कॉस्ट. So small costs which helps them to attract the customer.
सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेलिंग कॉस्ट। तो ये बहुत डिफरेंट तरीके से हो सकता है। हियर वी कैन से इट इंक्लूड्स आइदर पैकिंग, अच्छे से पैकिंग करके दो तो वो पैकिंग अट्रैक्शन देता है, नहीं तो you try to make your product itself an attractive which will attract the customer, either sales tax कम कर दो, we can say ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से कर दो। सो डिफरेंट थिंग्स आर बीन इंक्लूडेड। योर शोरूम एक्सपेंसेस ऑल्सो इज देयर, देन आफ्टर यू आर गिविंग डिफरेंट वाउचर्स, गिफ्ट्स और सेल प्राइस या लकी ड्रॉ विनर, कुछ भी निकालो जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होए। तो दिस इज हाउ इट इज बीन हैपनिंग। नाउ दिस इज अ दिवाली पीरियड, so in Diwali and New Year period we find that clothes, बड़ी बड़ी ब्रांड्स क्लोथ्स है, नहीं तो मोपेड की ही बात कर लो तो बहुत सारे लोग न्यू मोपेड्स परचेज करेंगे, न्यू कार परचेज करेंगे, मोटरसाइकिल परचेज करेंगे, दे विल राइदर टेक गोल्ड नहीं तो सिल्वर ज्वेलरीज लेंगे। सो दिस इज द टाइम वेयर दे ट्राई टू डू सर्टन एक्सपेंसेस एज द न्यू ईयर इज गोइंग टू कम। सो वेयर दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलर्स हु आर सेलिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, तो वो लोग डिफरेंट स्कीम्स निकाल, इवन इन द मोबाइल फोन्स you find that they try to go with giving some of the gift vouchers or the cashbacks, or we can say a voucher which will help you to purchase another thing। so कुछ भी आपको attract करने के लिए ये सब schemes आपको अभी मिलेगी। so it is the best time to acknowledge and get know कि market में ऐसे कौन सी oligopoly markets है। clear? so you just identify in this Diwali vacation that what are the things which is normally going on nearby surrounding, and ये अलग अलग सेलर्स कौन से टाइप ऑफ मार्केट्स के अंदर आते हैं। सो इट विल हैव, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। यू आर ऑलरेडी नोन बट यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि ये ओलिगोपॉली है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज एन आइडल, वो तो फार्मर्स में ही जाएगा। सो मोनोपॉलिस्टिक या ओलिगोपॉली, देयर आर डिफरेंट पॉलीज ऑल्सो, इज देयर ड्यूओपॉली एंड मोनोसोपोनी, बहुत सारे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, विच इज़ नॉट। सो हियर दिस सेलिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड प्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। अभी मार्केट द सेलर के पास वो प्रोडक्ट आ गया, अभी सेलर को कैसे सेल करना है वो डिफरेंट स्कीम्स निकाल के सेल करेगा, विच विल अट्रैक्ट द, वी कैन से द कस्टमर। सो देयर सेलिंग विल बी मोर। अगेन यहाँ पे एज सेलर्स आर फ्यू, जैसे डिफरेंट मोपेड कंपनीज लेस देन 10 है, तो वो लोग कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, दे ट्राई टू डू मोर ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड विल अट्रैक्ट द कस्टमर। सो टेलीविजन कार्स की बात करें तो उसमें भी ये सब चीज़ होता है। लास्ट सेकंड, दैट इज इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या, एक दूसरे पे निर्भर रहना। तो हियर सेलर्स आर फ्यू, दैट इज 5 to 6 और वी कैन से लेस देन 10। दिस पर्टिकुलर सेलर्स ट्राई टू इंटरडिपेंड, क्योंकि एक तो कॉम्पिटिटर है, तो कॉम्पिटिटर कुछ करेगा तो उसको ओवरकम करने के लिए दूसरा कॉम्पिटिटर भी कुछ करेगा, तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस चलता है। बिकॉज वो लोग एक पर्सन नहीं तो एक सेलर यहाँ पे पूरा रूल कर पाएगा, मोनोपोली कंट्रोल ले लेगा अगर इट इज हैविंग अ बेस्ट प्रोडक्ट। सो हियर वी कैन से दैट एज सेलर एंड प्रोड्यूसर्स, एज सेलर्स आर फ्यू इन द मार्केट, तो क्या करेंगे कि वो लोग डिफरेंट इंफॉर्मेशन लाएंगे कि भाई दूसरा सेलर क्या कर रहा है। एज अ कॉम्पिटिटर दे ट्राई टू नो व्हाट अदर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग और अदर प्रोड्यूसर्स आर डूइंग, तो उन लोग का क्या स्पेशल फीचर्स है, उन लोग ने क्या फोकस पॉइंट रखा है, व्हाट क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑन व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज एंड फ्लेवर्स एंड शेप एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर लॉन्चिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग, एंड उसके ऊपर वो लोग अपना काम करके उसका डिट्टो नहीं तो वी कैन से आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट उसको रखेंगे, सो दैट देयर विल बी ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन। अगर कॉम्पिटिशन ना हो तो क्या होगा, ओनली दैट पर्टिकुलर न्यू सेलर और नॉट न्यू सेलर बट न्यू प्रोडक्ट्स विल रूल। तो जो मेन प्रोडक्टर है नहीं तो मेन सेलर है वो रूल करेगा। मतलब दैट इज आपको डिसाइड करना कि आप किसकी बात करो, विच इज़ द मेन फॉर यू एंड विच इज़ द अदर कॉम्पिटिटर्स फॉर यू। सो यहाँ पे टेलीविजन मेकिंग कंपनीज है जो अपना न्यू डिफरेंट टेलीविजन्स, you find that every year there is a phone launch, every different months there is a different phone launch। तो एक ही कंपनी एक महीने में निकालती है, नो there are different phones where other different companies same launches with the same variant or same price, अपने अपने ही फीचर्स के हिसाब से, डिफरेंट स्क्रीन्स एंड डिफरेंट प्रोसेसर के हिसाब से वो लोग देते। तो दिस इज अ पीरियड वेयर इन द अर्लियर देर आर डिफरेंट फेस्ट, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी था, अभी भी चल रहा होगा मे बी। सो यू फाइंड दैट ये बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स जैसे कैशबैक वगैरह डिफरेंट थिंग्स के ऊपर से वो लोग अट्रैक्ट करते हैं, एंड दे ट्राई टू कम्पीट विथ ईच अदर बाय टेकिंग
the information or collecting the information, not taking but collecting the informations of their competitors also, like what are the things they are going to do, what are their future plans and how we should compete with them with our future plans. So ऐसे वो लोग डिपेंडेंट है. सो हियर वन कॉम्पिटिटर, वन सेलर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हमको रहना पड़ता है, नहीं तो हमारे कॉम्पिटिटर्स पे हमको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बिकॉज दे आर हैविंग द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. इसलिए क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है, इस वजह से डिपेंडेंट रहना पड़ता है. यू आर नॉट द मोनोपोलिस्टिक, और सॉरी नॉट द मोनोपोली. Last, the important point which comes for the 3 marks mostly in the examination, that is price stickiness. What is price stickiness and what is king demand curve? तो कुछ भी आ सकता है. Explain the king demand curve with the help of diagram. What? Explain the price stickiness with the help of diagram. So there is one small diagram, but there is a major impact or major topic concept which you need to understand. So very simple, but still you need to understand. So number of firms are less. इन दिस प्राइस स्टिकीनेस ये क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे फ्यू सेलर्स है, पहले से यही चीज़ चल रहा है कि फ्यू सेलर्स, बायर्स आर मोर, नाउ सिमिलर प्रोडक्ट्स आर देयर. तो क्या होगा, क्या होगा? सो एज आई हैव टेकन मोपेड एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट इट इज 76 or 78,000 प्राइस ऑफ द XS 125 and we can say Honda Activa. So this two आर द किंग कॉम्पिटिटर्स. अभी यहाँ पे एक समझो, पूरा समझो व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड टॉक्स, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी, कम होगी. तो यहाँ पे अभी ये टाइम किसका है, दिवाली का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है. व्हाट हैपेंस नाउ टू अट्रैक्ट द कस्टमर, व्हाट दे विल डू, they will follow the law of demand, that they will reduce the price. So from 78 or 76, what is the price, nearly we can say, suppose 75,000 is a price. Either they give a 5,000 rupees cash back, or they try to give us some of the gift hampers by giving some small watch. न्यू ईयर प्रेजेंट के लिए वॉच दे सकते हैं, नहीं तो दूसरा कुछ देंगे. सो दे ट्राई टू क्रिएट सर्टन सेलिंग कॉस्ट एंड उससे प्राइस रिड्यूस होगी, या दे विल अट्रैक्ट द कस्टमर. आइदर दे विल गिव सम प्रोडक्ट, नहीं तो कैशबैक ऑफर्स निकालेंगे, लकी ड्रॉ निकालेंगे, या वेरी लेस प्राइस से कम करेंगे. तो टू एंटर इनटू द कंपटीशन वो लोग ये चीज़ करेंगे. सपोज आवर मेन प्रोडक्ट इज XS 125. Okay, so XS 125 is costing 75,000 and its competitor is, another competitor is Activa. So XS 125 is having 75,000. Now this seller has reduced its price by 3,000. तो अभी वो 75 की जगह पे कितने मिल रहा है, 72. Now ultimately एक प्रोडक्ट 75,000 that is एक्टिवा ऑलरेडी है, और हमारे वाले मेन प्रोडक्ट ने 72. तो हमारे कॉम्पिटिटर्स तो यहाँ पे जाने वाले, क्योंकि 3,000 बच रहे. लेकिन जो एक्टिवा लेने वाले थे वो भी एक्सेस में, बिकॉज देयर इज हैज सेविंग ऑफ 3,000. सो इन दिस टाइप कि भाई 75,000 की गाड़ी ले रहे तो 3,000 क्यों देखना, बट स्टिल 3,000 बिकम्स अ मोर. सो सेविंग हो रहा है ना, तो वो कम में जाके एक्सेस लेंगे. इट हैज़ अ नेम, बोथ ऑफ देम आर हैविंग द नेम. सो यहाँ पे वो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि दिस पर्टिकुलर प्राइस reduce will attract the customer. So our one competitor has reduced the price in the market. Now what another does? तो ये पूरा information किसको मिल गया, अभी एक्टिवा. The market knows, the buyer knows. Now to attract the buyer, अगर ज़्यादा लोग किस पे attract होंगे, एक्सेस, because it is 72,000. Now only some few प्रेफरेंस ओनली, मतलब जो जिन लोग का प्रेफरेंस सिर्फ एक्टिवा है, होंडा एक्टिवा ही है, वो लोग जाएंगे, और बाकी सबका जिसका कंफ्यूजन है, नहीं तो एक्सेस वाले, तो वो सब कुछ एक्सेस लेंगे. नाउ टू एंटर इनटू द कंपटीशन, एक्टिवा व्हाट दे विल डू, और होंडा कंपनी व्हाट दे विल डू, दे विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ एक्टिवा मोपेड, दैट इज सेम टू द 72,000 और लोअर देन दैट. तो कहने का मतलब वो लोग भी रिड्यूस करेंगे, अभी बोथ द प्राइस आर सेम. तो अगेन तो कंपटीशन जो एक्सेस का ज़्यादा था, मतलब वो मार्केट में डिमांड ज़्यादा था, वो अभी हो गया सेम. मतलब एक्टिवा एज वेल एज एक्सेस बोथ केम द सेम. तो अभी वापस कंपटीशन सेम हो गया, वापस कन्फ्यूजन कौन सा बाइक ले कौन सा ना ले. अगेन द एक्सेस ट्राई टू गोज लोअर बाई 2,000. सो ऐसे करते करते वो लोग एक नॉमिनल, उन लोग का एक बेस पॉइंट होगा. दे हैव देयर बेस और नॉमिनल पॉइंट वेयर दे ट्राई टू कम टू द लोअर पॉइंट. तो कहने का मतलब कि उन लोग का मिनिमम 70,000 तक वो जा सकते हैं, या 68,000 तक जा सकते हैं, वो लोग जाएंगे. उसके बाद
आगे नहीं जाएंगे, उसके बाद आगे नहीं जाएंगे, बिकॉज इट इज़ द मिनिमम। वहाँ पे उन लोग को मिनिमम प्रॉफिट मिल सकता है, उसके बाद प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर वो उसके नीचे जाए तो। सो कहने का मतलब दे विल डू दिस कॉम्पिटिशन बाय लोअरिंग द प्राइस एंड एट द वन पॉइंट दे ट्राई टू स्टॉप और बिकम कॉन्स्टेंट, वेयर अगेन द मार्केट कॉम्पिटिशन जो एक ज़्यादा ले रहा था, डिमांड ज़्यादा हो रहा था, वो कम होके कांस्टेंट पे आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड दैट कि प्राइस की वजह से और द competitor is changing the price, so another competitor is also changing the price। तो एक सेलर दूसरे ऊपर डिपेंडेंट है, उसको उसका मार्केट रन करना है, डिमांड को कंट्रोल करके फ्यू के हाथ में मोनोपोली कंट्रोल नहीं देना, इस वजह से वो लोग ये चीज़ करते हैं। सो हियर इफ यू सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इट हैज शोन अ किंग, किंग मतलब बैंडेड और द टिल्टेड वन। सो जैसे डिमांड का वो कैसे होता है, यू फाइंड दैट दिस डिमांड को आइदर गोज लाइक दिस स्ट्रेट, तो लेकिन यहाँ पे ये बैंड होके यहाँ पे आ गया, क्यों? सो व्हाट दिस शोज दैट कि पहली चीज वी हैव लर्न द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे जो है एक हाई प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 75,000 पे इतनी डिमांड है, 74 पे इतनी, 73 पे इतनी, 72 पे इतनी आ गई। तो यहाँ पे से वापस उन लोग ने कम करते 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 70 पे ला दिया, 69 पे ला दिया, 68 पे ला दिया, 67 तक। सो वी फाइंड दैट एज दिस कॉम्पिटिटर्स हैव गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, वी फाइंड दैट इन सडन पॉइंट 72 के बाद एक पूरा ड्रॉबैक मतलब कम प्राइस कर दिया, तो इसकी वजह से डिमांड हमारा कम हो गया। सो पहले डिमांड कितना ब्रॉडर हुआ था, अभी दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने भी उसके लेवल तक कर दिया, तो ये डिमांड जो आगे होना चाहिए वो बैंड होके कम हो गया, बिकॉज तो मार्केट के अंदर दोनों प्रोडक्ट के प्राइस सेम हो चुके हैं। सो इट शोज अ बैंड इन अ डिमांड कर्व दैट इज नोन एज किंग और प्राइस स्टिकीनेस। तो यहाँ पे किंग डिमांड कर्व मतलब देयर इज अ बैंड इन अ डिमांड कर्व वेयर वी फाइंड दैट कि एक सेलर कम प्राइस करे तो दूसरा सेलर भी प्राइस कम करके नॉमिनल प्राइस जब तक उन लोग को ना मिले तो वहां तक, एंड जब नॉमिनल प्राइस हो जाए नहीं तो सेम प्राइस हो जाए, द डिमांड विल अगेन बिकम कांस्टेंट, द कंपटीशन विल बिकम स्टेबल। लेकिन जब तक एक दूसरे का भाव में डिफरेंस रहेगा वो कंपटीशन एक के पास मेजर रहेगा, नहीं तो डिमांड एक के पास मेजर रहेगा, दूसरे का कम होगा। सो लेट्स अगेन जस्ट read this which will give you a better idea. So there is a decrease in the demand for a product sold by the other firms. If a competitive firm do not wish to in this situation that they also should decrease the price of the product, sorry the price not wise, the price of the product to stay in the competition। मतलब अगर अदर कॉम्पिटिशन ऐसे ना सोचे कि मैं अगर प्राइस रिड्यूस नहीं करूंगा तो मैं कंपटीशन से बाहर नहीं निकलूंगा, मतलब कहने का मतलब कि वो लोग सोचेंगे कि भाई सपोज मैं अपना प्राइस रखूंगा तो मेरे प्रोडक्ट बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। इफ दे थिंक इट विल सेल, मेरे को वो चलेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड सेज, एज एंड व्हेन प्राइस रिड्यूसेस उसका डिमांड बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ये बूम पीरियड है जहां पे लोग ज्यादा परचेज करते हैं। सो दैट टाइम वी हैव सीन कि जो प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी वो ज्यादा बिकेगा। तो अदर सेलर हैज टू थिंक दिस इज अ बूम पीरियड, वी हैव टू रिड्यूस द प्राइस। इफ दे डज नॉट रिड्यूस, द कॉम्पिटिशन इज बीन ओनली विद द पर्सन विच जिसने प्राइस पहले कम किया है। नाउ एट द एंड ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रीचेस टू द नॉमिनल, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द प्राइस फर्दर। मतलब एक मिनिमम पॉइंट तक वो लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद वो रिड्यूस नहीं हुआ। अगेन जब वो मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगा और दूसरा सेलर भी मिनिमम पॉइंट पे आ जाएगा तो वो सेम हो जाएगा, तो कॉम्पिटिशन विल बिकम स्लो। So on the other hand, if a firm increases the price of the product, then the demand of that product decreases and the competitive firm are profitable। मतलब हमारा मेन फर्म ने प्राइस बढ़ा दिया और दूसरे फर्म ने प्राइस ऐसा है वैसा रख दिया, तो क्या होगा कि उसकी डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि हमारा प्राइस ज्यादा दिख रहा है। सो प्राइस राइज, द लॉ ऑफ डिमांड सेज द डिमांड डिक्रीजेस। सो पूरा लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर काम कर रहा है और इसकी वजह से देयर इज अ बेंड। So we have to understand when it is bending, when it the nominal price पे आ गया और उसके बाद competition same हो गया, there is a change in the demand। now the demand जितनी जैसे वो बढ़ रही थी वैसे नहीं बढ़ेगी, वो कम हो जाएगी, it will bend like this। ऐसे होना चाहिए था लेकिन ऐसे हो गया, नहीं तो ऐसे दिखाओ। okay, so this is how king demand works। so it is called that the this resistant मतलब ये जो चेंज कांस्टेंट है उसको बोलेंगे किंग डिमांड।
Clear? I hope this is the last lecture. You have understood well. If you still find any doubt in this topic, you can just call or message me. Okay. Regarding this, we have completed our chapter. Next after Diwali, we are going to go or learn with the next chapter. That is chapter 7. Okay, Indian economy. Happy Diwali. Lastly, Happy New Year. Stay safe, stay well. We'll see you soon. Thank you.